हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो फ्रीडम स्ट्रगल। भाई जो इंडिया ने की थी ना, सब मतलब कि उसमें एडिट है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। भाई नेक्स्ट भी जरूर बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे पर शाम। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। जहां हवा आज भी खौफ से कांपती है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी थी, पर हवा में कुछ अजीब था। लोग आए थे अपने हक की बात करने, पर गेट बंद कर दिया गया और खुली हवा मौत का पिंजरा बन गई। गोलियां चली, ना इंतजाम था ना सुनवाई, सिर्फ कत्ले आम। कहते हैं अगर कान लगाओ उस दीवार से, आज भी चीखें गूंजती हैं। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक पैगाम था। अगर हम खामोश हुए तो ये नफरत दोबारा जीत जाएगी। जलियांवाला बाग सो गया है, पर उसकी दीवार अब भी हमसे सवाल करती है। तो Eso fue lo que dijiste tú, no era amor. ये नजारा अमृतसर के जलियांवाले बाग का है, जहां सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के हुक्म पर अंधाधुंध गोलियां बरसा। 55 miles from Patna, there flourished at Nalanda from the 2nd to the 10th century AD, a famous university, a center of learning for 10,000 ordained monks and other students. Yun Xiang, who studied here for 5 years, said, Nalanda's soaring domes touched the clouds, and the pinnacles of its temples seemed to be lost in the mists of the morning. Such was its glory. The enlightened one did exhort the middle course, the noble eightfold path: right views, right aspirations, right speech, right conduct, right livelihood, right exertions, right mindfulness, and right contemplation. Scores of foreign students came here to dispel their illusions, returning to their own homes with the lamp of learning kindled at Nalanda. Even now Buddhists from other lands come here, seeking solace through meditation, to gaze at the past glory of Nalanda. In diesem Kampf, der für Indien Heilkampf, Unheil oder Nichtsein alles Blut einen Ausgang geben, unseren Feinden. Lang leben,
möchte und jetzt Verbündeten. Lang lebe das Vereinigte. Hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। Yagannath is the lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival, draw his shrine through the street. It's the beat of Indian drums and the marvelous chant of Indian voices. ये वो राष्ट्रीय यात्रा है अकेला तुमको कुछ कितना भारी पड़ रहा है ये देखा लग रहा है देश के बच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए मैं अहिल्याबाई होलकर ये सौगंध लेती हूँ, ये शपथ लेती हूँ कि प्राणों के अंतिम सीमा तक, सांसों के अंतिम छोर तक, मानवों की सेवा करूंगी, मानवों के लिए लड़ूंगी, मानवों के लिए जीऊंगी और मानवों के लिए ही मरूंगी। Burn the covers, if the covers burn, I gotta turn the measures, hoping the first pick you wanted to pick like a Barney Captain. How many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free? But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. भारत ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। भगत के साथ नहीं जाऊंगा,
अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। मतलब जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ही मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं फिर चैन से जीता रहूंगा। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, आए दफा 121 बंदे को नहीं और दफा 302 के तहत फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন যে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করবার পর আমি কি করব। এর উত্তরে और भी जोड़ा था ना আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে আজ ভারতবর্ষের সম্মুখে একটা মস্ত বড় সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এই সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, যদি ঠিক পথে চলে কৌশল অবলম্বন করে, Let us take full advantage of the present international situation and achieve our goal of complete independence. পূর্ণ স্বরাজ লাভ করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। आजादी कोई भीख नहीं, ये हमारा अधिकार। हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं होता। साफ भाई करनी पड़ेगी ये लो। Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, and Jawaharlal Nehru of the Indian National Congress conceived to divide India. Fearing a total loss of control, Mountbatten brings forward the transfer of power to August. Two nations will be created by partition, a secular India and a new homeland for India's Muslims, Pakistan. इधर हुआ था पाकिस्तान इधर ये देखो, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि करें क्या और कहाँ जाएं। हर दिन बेचारा क्या हम अंग्रेजों ने 15
अगस्त 1947 के दूसरे ही दिन भारत छोड़ दिया था। सुनो हमने देश कैसे छोड़ा, कैसे गए और उस वक्त माहौल कैसा था। आजादी के बाद बाहर भारत की सड़कों पर जश्न था और तिरंगे लहरा रहे थे, लेकिन हमारे कैंपों के अंदर डर, बेचैनी और गहरी चुप्पी थी। हमें साफ समझ आ गया था कि अब भारत में हमारा राज खत्म हो चुका है और यहाँ हमारी कोई जगह नहीं बची। हमने बोरिया बिस्तर समेट लिया। हम में से ज्यादातर अफसर जल्दबाजी में जहाजों से निकले। कई लोग घर, फर्नीचर और अपना निजी सामान तक छोड़कर चले गए। कुछ अफसर इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने रातों रात भारत छोड़ दिया। हालात बिल्कुल हार कर भागने जैसे बन चुके थे। इसी अफरा तफरी के बीच हमने सेना, पुलिस और रेल जैसे पूरे सिस्टम भारतीय अधिकारियों को जल्दबाजी में सौंप दिए। ट्रेनिंग अधूरी थी, व्यवस्था टूटी हुई थी और हर तरफ केओस था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने जिम्मेदारी संभाल ली। सच कहूं तो भारतीयों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के कोई देश नहीं कर पाए। हम पूरी तरह जमे हुए थे, फिर भी हमें उखाड़ फेंका गया। 1948 से 1949 तक आते आते हम में से ज्यादातर भारत छोड़ चुके थे। कुछ सलाहकार बचे, लेकिन सत्ता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सलाम उन देशभक्तों को जिन्होंने जान की भी परवाह नहीं की, वो अपने देश के लिए लड़े। वीडियो अच्छी लगी तो ये चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ये यार बहुत कमाल की एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई देखा जाए ना, जो एक स्ट्रगल करनी पड़ी थी ना भाई इंडिया को, वो बहुत मतलब के हार्ड थी। और इतनी मतलब के जाने दी, इतने शहीद हुए, लेकिन भाई हम जज्बे की बात करते हैं। तब था लोगों के अंदर जज्बा, और तब एक आज़ादी का नशा था। चाहे मतलब के जितना भी एक आप कर लेना, जो आज़ादी का नशा होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक अलग नशा होता है। क्योंकि हमने भाई एक अमरीश पुरी की मूवी देखी थी, उसमें उसने कैद करके सबको रखा हुआ था, और मतलब कि किसी हीरो ने छुड़वा लिया था उनको, और उधर वो डायलॉग बोलता है कि जो आज़ादी का नशा होता है ना, वो और किसी चीज में नहीं होता। तो जैसे ये आज़ाद होंगे आपके चुंगल से, ये सब कुछ भूल जाएंगे, आपकी अय्याशियां और सारी चीज। और वही एग्जैक्ट है हुआ था भाई ब्रिटिश से। जैसे ही एक आज़ादी हुई थी ना, लोग बहुत खुश थे, और इधर भाई उनको धकेल कर मतलब कि कुछ बोलते हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही चले गए, तो उनके पास पावर थी। भाई ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था। जब उनको पता था ना कि हैवी चीजें हो गई हैं, तो तब भाई वो भाग गए थे। और बहुत स्ट्रगल है, तब पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। हमने भाई आजादी उनसे एक ली थी। एक यही सब हमारे हीरो थे, जिनका भाई हमारे मतलब के नामो निशान ही नहीं है इधर पाकिस्तान में। आजादी हुई एक असल उधर थी, भगत सिंह दे ले, और मतलब के एक इतने फ्रीडम फाइटर थे। और एक क्या यार माहौल होगा उधर, मतलब के कैसे लोग बेचारे का यार, आप सोचिए कि क्या माहौल होगा उस टाइम पे। देख लें कि कितनी आवाम खुश थी, क्योंकि भाई उन्होंने आज़ादी पाई थी उन गोरों से जिन्होंने भाई बहुत जुल्म किया था उनके ऊपर। बाकी भाई जो है ना, दोनों साइड पे जब दोनों कंट्री अलहदा हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया, तब भी भाई बहुत जो है ना कत्लो गारत हुआ था। उस टाइम पे भी बहुत दोनों साइडों से भाई हुआ था सारा काम। बाकी भाई बात की जाए ना, इंडिया के जो हैं जिन्होंने भाई बचाया, गोरों से आज़ादी दिलाई थी, हमारी साइड पे तो उनका नाम नहीं लिया जाता। तब तो पाकिस्तान का कोई कंसेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे। हमारे लिए हमारे जो भी हीरो हैं वही बनते हैं, तो हमारे आज तक भाई किताबों में या कहीं पे उनका भाई नाम नहीं लिया जाता। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और यही एक महीना है जब के एक अपने जो हीरो है ना, उनको याद किया जाता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल से हमें एक आज़ादी लेकर दी थी। एक जलियांवाला जो बाग है उसकी बात कर ले, तो वहाँ तो एक बिल्कुल सबको इकट्ठा करके कैसे ख़त्म किया गया था। तो वो अब भी एक हिस्ट्री वहाँ जाकर देखना, तो अब भी एक दिल डरता है कि तब एक लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा था, या किस तरह उन्होंने एक अपने नीचे सबको लगा के रखा हुआ था। लेकिन ये कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा कोशिश की, या जिन्होंने एक झुकने से इनकार कर दिया, उनकी वजह से ही एक ये सब मुमकिन हो सका है। बहुत सारे उसमें एक भगत सिंह नाम है उनका, सुभाष चंद्र बोस, मतलब बहुत सारे एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक आज़ादी ली थी। बाकी शॉट्स बहुत अच्छे थे भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखें उन्होंने भाई जद्दोजहद इतनी की थी कि भाई जितने भी उनके जो बहादुर से अपना सिपाही थे, वो जितने भी पकड़े जाते थे, और अंग्रेज़ों का उस वक्त जुल्म इतना था कि भाई वो जैसे ही इन लोगों को पकड़ते थे, या तो गोली मार देते थे या फांसी लगा देते थे। तो उस वक्त उनका भाई एक औरा बोलता था, और उन्होंने इन लोगों पर जुल्म भी की है, खीर की है। लेकिन जैसे जैसे भाई वक्त टलता गया है, तो उसके बाद भाई जब इन्होंने अपना आखिरी दम लगाया है, तो जाहिर बात है भाई जब पूरी एक जो अपना एक मुल्क है,
तो जाहिर बात है जब वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा, जो जैसे ही अपनी जद्दोजहद ज़्यादा करेगा तो जाहिर बात है और कामयाबी उसके सामने भाई ज़रूर खड़ी होती है। तो ऐसी बात है, उन्होंने भाई अपना पूरा जोर लगाया है और अंग्रेज़ों से आज़ादी भी ली है, और बाद में भाई अंग्रेज़ भागे भी हैं यहाँ से, जब उनको पता चला है कि अब हमारा भाई यहाँ पर रहना जो है ना वो बिल्कुल फारग हो गया है, तो उस वक्त उन्होंने भाई सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भागे भी हैं। इस तरह भाई अभी तक भी भाई जो उधर जहाँ जिस हवेली या में जो उधर गोलियां वगैरह चलाई थी ना, आप भी उधर दीवार के साथ कान लगाए ना तो उधर चीखने की भाई आवाजें आती हैं भी उधर से। और ये देख लें कि उधर सब कोई भाई उधर बर्बाद हुआ था, लेकिन जैसे ही भाई इनको आज़ादी मिली जाएगी तो गोरे भाई उधर से धूम दबा के भाग गए। उन्होंने जैसे ही अपना जीत का जश्न मनाया तो गोरे भाई उधर से निकल गए, भाग गए भाई उधर से सामान अपना समेट कर। ऐसे ही है डाल गए थे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई जो है ना वो उस वक्त बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई थी एक अपना मुल्क जो है ना वो आज़ाद कराने के लिए। हालांकि इस खिते ने भाई ऊपर से आके जो मतलब इस खिते के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हुकूमत की है, लेकिन ये जो मतलब गोरों वाला सीन था ये लास्ट था। उसके बाद क्योंकि इसमें जो एफर्ट हुई थी या इसमें जो भाई जो ना वो मतलब जितनी भी तहरीकें चली थी, मतलब हर एक तबके ने पार्टिसिपेट किया था। जेंट्स तो जेंट्स ही थे भाई, जो मतलब जो औरतें हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे नॉमिनेटेड नेम है जो मतलब इसमें थे, लेकिन भगत सिंह या इस तरह के जो मतलब थे ना, इन्होंने जो मतलब कुर्बानी दी थी ना, मतलब वो डरे ही नहीं है यार। उनके अंदर एक जज्बा ही एक और तरीके का था, क्योंकि एक देखो ना उन्होंने एक ख्वाब देखा या मतलब एक सोच उनकी थी कि हमने यहाँ से जो भी इधर एक भाई ये गोरे कर रहे हैं या मतलब जुल्म वगैरह हो रहा है या इससे जो है ना वो एक दफ़ा आज़ादी दिलानी है। एक दफ़ा हम तो चलो कुर्बानी दे देंगे, लेकिन आने वाली नस्लें तो कम अज़ कम जो है ना वो महफूज रहेंगी और अपना सुकून से लाइफ गुजारेंगी। तो उसके ऊपर उन्होंने भाई वो एक मैदान में कूदे और आज देख लो कि भाई एक हर तरफ सुकून ही है, बाकी शॉर्ट है। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।